کو میں آپ کی اور شیرین سے حاضر خدمت ہوں جی۔ جناب ستارہ یاسین کا ولاگ آیا، انہوں نے گھر کی بجائے شاپنگ کر رہی تھی، راستے میں ہی اپنا روزہ افطار کر لیا اور دل بھر کی گرما گرم ابیو سے بھری ویڈیو آئی، کس کے لیے آئی، کس کو کیا اور کیوں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی وائف فاطمہ کو بھی جواب دیا۔ میرے خیال میں فاطمہ کو جو جواب دیا وہ خاص ہے، امپورٹنس ہے، کیا انہوں نے اپنی بیوی کو کیا جواب دیا۔ اور بھی ہم نے دیکھا اپنی لاہور والی سسٹر جو کل تک اپنی چین بیچ رہی تھی، آنسو آ رہے تھے آنکھ میں، اور اب ان کے پاس عیدی آ گئی ہے، کس نے بھیجی، کیوں بھیجی، کیا ہونا چاہیے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ جناب پہلے تو ہم آپ کو دعا دیتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے، دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کرے، اور جو ان کی اولادیں نہیں ان کو اولاد دے، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو سلامت رکھے، اور ان کے سر پہ سایہ اپنے شوہروں کا، اپنے باپوں کا، اپنے بیٹوں کا رکھے۔ اچھا جی، اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ ستارہ یاسین کے بارے میں بعد میں کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے ولاگ میں کوثر اور ان کی امی جو ہیں اپنے جو اسلام آباد میں گھر لیا ہے ساجد بھائی نے، وہ وہاں چلی گئی ہیں، پورے دن ان کے گھر میں نظر نہیں آئی۔ پیچھے سے ستارہ یاسین ساجد بھائی کو لے کر رات گئے تک شاپنگ کرتی رہی ہیں اور عید کے سوٹ خریدیں، کیونکہ وہ ان کو کراچی میں بھی دینا ہے۔ ظاہر دلبر بابر کے گھر وہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی بیویوں کو، بچوں کو وہ گفٹ بھیجتی ہیں، اس دفعہ بھی بھیجیں گی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں گفٹ بھیجنا ہے، تو بھیجنا ہے، سینڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ یہ ساری چیزیں کر رہی تھی۔ تو ان کی افطاری جو ہے وہ راستے میں ہی ہو گئی، انہوں نے کھایا پیا اور پھر وہاں سے پھر دوبارہ لی، اس میں ان کو کافی ٹائم لگ گیا۔ ساجد بھائی کو چھوڑنے گئے، پھر اس کے بعد بھی ان کو واک کرنی تھی، ساجد بھائی کو لے کے واک بھی کری ہے، کیونکہ میں سمجھتی ضروری نہیں تھا واک، ضروری نہیں تھا، گھوم پھر کے آپ آ گئے تھے، واک کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، جب دو بیویاں تو پہلی بیوی ذرا اس طرح کے کام کرتی ہے، عربے استعمال کرتی ہیں، 100% وہ ستارہ یاسین یوز کر رہی ہیں۔ ساجد بھائی نے واک کری، پھر جب وہ یہاں سے پوری طرح سے فارغ ہو گئے، وہ اپنے دوسرے گھر کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں گئے ہیں نہیں گئے، مڑ کے واپس آ گئے، ان کا آپس کا معاملہ ہم نے جو ویڈیو میں دیکھا ہم نے تو وہی آپ کو بیان کر دیا۔ اچھا جی، اب پیچھے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے صوفے پہ بھی سو رہے تھے، آڑے تھے، پتہ نہیں ان کو کیسے نیند آ جاتی ہے، چھوٹے سے سنگل صوفے پہ طیبہ کیسے سو جاتی ہے گردن لٹکا کے، ہم سے تو نہیں بھی سویا جاتا آج تک زندہ، ہم تو ٹرین میں بھی سفر کرتے ہیں تو اس کی سیٹوں پہ ہم پورے نہیں آتے۔ جب بچے ایسے بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی نہیں سو پائے تو کیسے ہوتا ہے۔ اور پھر اگر اب آپ یہ کہیں گے وہ جو انیتا ہے، وہ جو اپنا رمضان ہے یا کوثر رہتے تھے، وہ کیوں نہیں اٹھاتے تھے، وہ کیسے اٹھائیں اتنے بھاری بھاری بچوں کو، بچے جہاں ٹی وی ہوتا ہے نا، دیکھیں وہیں ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں، ہمارے بچے تھے، فیملی ہوتی ہے، ایک ٹی وی تو اس میں ڈرائنگ روم میں رکھا ہوتا ہے، وہ تو میجر ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اپنے روم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی لک آفٹر بھی کرنی ہوتی ہے، بچوں کو ہدایتیں بھی دینی ہوتی ہے، جھگڑا بھی نہ ہو، تو ایک روم میں اب جہاں سوتے ہیں جاگتے ہیں وہاں پہ بھی ایک ٹی وی ہوتا ہے، تاکہ ساری ایکٹیویٹیز پر ہم نظر بھی رکھیں اور بچہ ہماری نظر میں بھی رہے، اور اگر نیند آ جائے تو وہیں پہ سو جائے اور ٹی وی بند کر کے سو جائیں۔ یہ عام گھروں میں ہوتا ہے۔ اب تارا جی کے گھر میں نہیں، کہ وہ بلاگر ہیں، بنانا ہوتا ہے انہیں، حال میں بیٹھنا ہوتا ہے، سب کی ایکٹیویٹیز دکھانی ہوتی ہے، تو وہاں پہ تھوڑا معاملہ چینج ہو جاتا ہے، بچہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے، اس لیے کسی کو تنقید نہیں کریں، دوسرا بیٹھا وہ بچے کیوں کسی کی بات مانیں گے، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی کہیں بھی ہے وہیں سو جاتا ہے، تو یہ ہے معاملہ وہاں کا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ رمضان، اب تارا جی چلے جاتے ہیں، کوثر ان کی امی گھر پہ نہیں ہوتی ہیں، تو پھر رمضان کی بیوی گھر پہ ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، یہ میرے خانہ نوبیتا کی طرح کے، وہ کبھی نظر نہیں آتے، وہ اچانک بھی کسی ویڈیو کے اندر نہیں آتے۔ یہ بڑی بات ہے کہ رمضان کی بیوی سارے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے بچے جو ہیں موجود ہیں، ان کا وجود ہے، چلیں جی، وہ ان کے ساتھ رہ کے بھی کام کرے، اگر ان کو ایک طرف رکھ کے بھی کام ہو رہا ہے تو چلیں اوکے ہو جاتا ہے، یہاں سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی، کس کے پر بات کریں، سلمیٰ اور اس پہ بات کر لیتے ہیں ہم، نینا پہ۔ اب نینا نے اپنی وہ دکھائی ہے، امپریشن دکھائیں کہ جب اس کا ویڈیو چینل چلا گیا تھا تو دیکھنے میں وہ نارمل دکھائی دے رہی تھی، مگر لوگ ان پہ تنقید کر رہے تھے، لڈیاں ڈال رہے تھے، دھمال ڈال رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور میرے خیال میں اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے، لیکن پھر وہ واپس آ گیا۔ اب وہ اپنی دکھا رہی ہیں، لوگوں نے کس طرح میرے پر ریئیکٹ کیا، پھر بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے اور میرا آ گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا، یہ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چینل آیا کیسے، کس نے واپس کرایا،
ऐसी क्या वो सारा शक जो है ना सलमा जी पे जा रहा है। वो कह रही बड़ी बाजी ने करवाया होगा, उनके बड़े ताल्लुकात हैं सलमा बाजी के, तो उनके ज़रिए से उसका चैनल जो है वापस आ गया। ऐसा हो सकता है? लेकिन शाहरुख भी तो इन कामों में तेज़ है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर वो अपना चैनल लेने के लिए कोशिश करते रहे और उनको मिल गया। चले ये भी अच्छी बात है, हो गया। अब शक जा रहा है हमारी सलमा जी पे। हमारी सलमा जी मैंने बोल दिया, आप समझो मैं उनकी हूँ नहीं। हम तो वीडियो देखते हैं, वीडियो में जो होती है बात हम वो पेश करते हैं। अब लोगों को इतराज़ है कि सलमा जी जो है ना मस्जिद नबी जाती हैं, कभी मस्जिद कूबा जाती हैं, मस्जिद शोहदा जाके अपने बड़े अपने वो पॉक साफ दिखाने की कोशिश करती है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जब कभी कहीं सऊदी अरब में और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही होती है वो दिखाती है, तो वहाँ पे भी इतराज़, शर्म नहीं आती? बेहया बेशरम हाथ दिखा रही है लोगों को, कपड़े यूरोप वाले कपड़े पहने हुए हैं सऊदी अरब में, उन लोगों को भी दिखा रही है। ये गलत है वहाँ। आप फिर आप उस पर भी नाराज़ होते हो। मैं एक बात बता दूँ, सऊदी अरब एक मदीना मक्का जो है एक अल्लाह ताला का एक पाक जगह है। हर अल्लाह की सारी ज़मीनें पाक हैं, हर जगह एक जैसे ही असूल हैं अल्लाह ताला के। लेकिन इन दो मकामात पे रहमतें ज़्यादा हैं। यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं। जब हम उम्रा पे गए थे, थोड़े से ही फासले पे हमारा होटल था, हमने ऐसे सीन भी देखे। घर अरबी लोगों के घर हैं जहाँ से वो पैदाइशी लोग रहते हैं। तो लोग जो पाकिस्तान में होता है, जो दुनिया में होता है, वो काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसका गुनाह फिर उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि शहर में अगर रहमतें ज़्यादा हैं तो फिर गुनाह की तादाद भी करेंगे तो गुनाह भी है। वहाँ सब कुछ तरह के लोग होते हैं, सब होते हैं, पर्दा भी होता है। लेकिन ये कि अच्छी चीज़ दिखानी चाहिए। अब वो अच्छा दिखाए तो बुरा, ना दिखाए तो बुरा। अगर वो एक बेवफा शौहर के साथ ज़िंदगी अगर गुजार रही है, आपको वो भी परेशानी है, आप छोड़ दें। हाँ, आपकी किसी और के लिए छोड़ दे, आसानियाँ कर दे। अगर वो उसके साथ रह रही है तो इसका मतलब उसका शौहर उसके साथ रहते हुए दूसरी औरत पे हाथ ही नहीं डालेगा। इसके साथ अगर वो दिल चाहे ना छोड़ना भी चाहे तो 5 बच्ची हैं, उसका खर्चा कौन उठाएगा, कौन बनाएगा? आप तो जज्बात में आके बहुत कुछ बोल जाते हो। अपने ऊपर अप्लाई करके देखें तो फिर बात कुछ और हो जाती है। अब अपने पर अप्लाई करें तो फातिमा की भी बात हो जाए साथ साथ, कि फातिमा कह रही है कि मैं सऊदी अरब जा रही हूँ, दिलबर मुझे जाने दो। दिलबर ने आके जवाब दे दिया, आपको मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? जब आप यूट्यूब अपने फ़ैन से मिलने जाती हो, सब्सक्राइबर से मिलने जाती हो, तो क्या मुझसे पूछ के जाती हो? मैंने मना भी किया था, बाबर से कहलवाया भी था कि इसको मत भेजना, मगर आप फिर भी चली गई। तो सऊदी अरब जाते हुए आप मुझसे पूछोगी। उसने ये कहा, बात तो सही है। लेकिन अब लोग बात उठा रहे हो, अच्छा फातिमा से लोगों से मिलती है, पता नहीं मर्दों से भी मिलती है, क्या करती है, पैसे लेती है। भाई ऐसी बात है। जो मुझे समझ में आ रहा है ना, वो ये है कि एक तो नजमंटी है। अब उसको दिलबर की तो बात घुमा फिरा के करने की है उसकी आदत के मुताबिक, तो मैं यही कहूँगी। या फिर नजमंटी के अलावा भी वो तो हेल्प भी करती है पूरी पूरी। या सितारा यासीन का कराची में मीटअप था, उसमें हमारा दिलबर नहीं शामिल नहीं था, तो उसने अपनी बीवी को भी मना कर दिया, मैं नहीं हूँ तो तुम भी नहीं हो। तो लेकिन वो वहाँ गई थी, वो कह रहे हो। अब ऐसा थोड़ी है कि वो बुरखा पहन के रात के 12 बजे 1 बजे निकल जाती है अपने सब्सक्राइबर से मिलने के लिए। इतना दूर मजा है। दिलबर की बातों का भी सोचे, वो औरतें गलत थोड़ी हैं। आप साबित करना चाहते हो, जो औरतें हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनकी आपस की जो कहानी चल रही है इसमें कहीं ड्रामा हो। देखे ना, वो दिलबर ने खुद ही बोल दिया कि अम्मी आप इस फातिमा के व्यू काम आने लगे, तो अम्मी को फ़ोन करके कह रही है कि मैं ना दिलबर के ऊपर रिएक्शन दूंगी, आप दिलबर को कह दो कि प्यो मुझ पर रिएक्शन ना दे। उसे भी डर लगता है, वो भी कपड़े उतार देता है। तो परमिशन दे के फिर मैंने उनको बताया कि फातिमा रिएक्शन देगी आपके ऊपर, तो गुस्सा मत होना। तो ये हो सकता है, ये बात मानने वाली हो सकती है। हाँ, फातिमा ऐसा कर सकती है। और दिलबर जो खुल खुल के अपनी वो इधर उधर पंगे लेते फिरते रिएक्शन देते थे, ये है कहानी, ये कंटेंट है बनाया हुआ, हम इस चीज़ को मानते हैं। और मैं दिल से मानती हूँ फातिमा सऊदी अरब नहीं जा सकती। अभी तो उनके पास पैसे ही नहीं थे। उससे पहले वो लोगों से कहते हैं हमें व्यू दें, हमें डॉलर दे तो हम जाएं। वो तो कुछ अरसे के लिए विजिट वीज़े पे जा रहे थे। अब ये बच्चे समेत जाएंगी, वहाँ रहेंगे। अब्बा जी तो 2-4 दिन में ही बदल जाएंगे। अब्बा जी भैया किसी के नहीं होते भैया। अगर चोर कुछ दे रहा है रख रहा है आपको, वहीं बेहतर। और आपकी कराची में पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बन जाएगा, कहीं और नहीं। और जहाँ तक
दिलबर ने ये कहा ना वो पढ़ाइयाँ नहीं होती, अच्छी नहीं होती, ये वाली बात गलत है। सऊदी में भी पढ़ाई अच्छी होती है, अच्छा स्कूल हो, वहाँ पे भी पाकिस्तानी बच्चे अच्छा पढ़ सकते हैं। मगर फ़र्क ये है कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं, आमदनी कम होती है, टैक्स वहाँ बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, तो स्कूल अफोर्ड करना मुश्किल होता है। स्कूल अफोर्ड करना मुश्किल होता है, क्योंकि अब देखो ना, अरबी में तो उनकी अपनी ज़बान अरबी में होगी, अंग्रेज़ी होगी, फिर आप ख़ास स्कूल में, लोकल स्कूल में तो नहीं जाओगे, वहाँ तो अरबी, आपके बच्चों को अरबी नहीं आती। आप एक ख़ास स्कूल में जाओगे जहाँ हो, वहाँ तो फिर फीस होगी ना, वहाँ पे इंग्लिश की होगी, या पाकिस्तानी में भी करा लोगे तो इंग्लिश है, वो अभी बच्चे इतने डेवलप नहीं हुए होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा, हमारे भी रिश्तेदार मैट्रिक खींच खिंचा के वहाँ पे करा लेते हैं, फिर मैट्रिक के बाद जो कॉलेज की लाइफ होती है उन्हें पाकिस्तान आना पड़ता है। लेकिन बात वही है कि टैक्स बहुत लग चुके हैं, फातिमा का वहाँ रहना मुमकिन नहीं है, बाप के बलबूते पे जाए भी ना। अब यूट्यूब का मैं यूट्यूब चला लूँगी, ओ यार यहाँ रह रहे हो ना दिलबर बाबर, ये एक ढूंढी है, बगीचा है आपका जहाँ, और आपकी बहन भी, इससे अच्छा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठोकर खा के फिर खोती वहीं आएगी, फ़ायदा फिर ये तजर्बा है। बाकी वो नहीं जा रही, वो अब से ऐसी कंटेंट के लिए बना रही है, हमदर्दियाँ बटोरी, हाँ तो मैं ये कह सकती हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, दिलबर ने दी हैं गालियाँ, टोकरे भर भर के दिए हैं। वो जो जिनको दिए, मैं समझी किसी और को दिए कि मैंने किसी की देखी उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मैंने उनको दिए गाली। अब मैंने उनका चैनल खोला, भाई मेरे से तो खुला नहीं है, जो नकाब लगा के आती हैं सिस्टम। तो मैं ये कहूँगी, जो सिस्टर हैं गालियाँ देने में तो वो भी पीछे नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि हम किसके लिए अपने आप को नंगा करें, कि दिलबर भी तो सब कोई नंगा ही करता है। तो आप किसी के लिए, जिसके लिए आप कर रहे हैं वो कोई मैदान में नहीं आ रहा, आपने देखा भी नहीं, कभी वो आए भी नहीं है, तो आप भी संभल के दो। आपको तो डॉलर आ रहे हैं ना, नकाब पहन के भी आ रहे हैं ना, तो ज़बान रमज़ान के महीने में इस तरह की ज़बान तो फिर यूज़ भी नहीं होनी चाहिए। दिलबर ने जो किया गलत किया, लेकिन फिर वो कहता है मैं इतना गंदा तो नहीं जितने लोग कह शुरू कर देते हैं। तो भाई बात यह है कि नॉर्मल ठंडे ठंडे होके करें। बहुत सारे लोग हैं रिएक्शन में हैं, सतारा यासीन की फेवर करते हैं, दरमियाने होके चलते हैं। अब इसके लिए ये तो नहीं बारूद खोल दिया जाए, या उसकी फेवर करने के लिए हमें गलत आईडी से आएँ और फिर कलमा पढ़ लें, और कलमा पढ़ के झूठ, कलमा तो सच था लेकिन अपनी बात को सच साबित करने के लिए इस्लाम को यूज़ करें, कलमे को यूज़ करें, और फिर भी रिटाई में आके ऐसी चीखें चिल्लाए, तो अच्छा नहीं लगता, असर अच्छा नहीं होता। ठीक है, और फिर बात कर लें, वो हमारी लाहौरी बहन है, उनके पास कल रो रही थी, आंखों में आंसू थे, चेन बेच दूंगी, यानी कि चेन बेच के गुजारा करूंगी, ईदी लाऊंगी बच्चों की, और आज कहीं से 10-20 हज़ार रुपये आ गए हैं। वो पूछ रही हैं अपने हस्बैंड से, वो नहीं बता रहे हैं। तो उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि फिर वही लोग, मैं क्या कह रही हूँ, लोग कहते हैं कि भी ये तो अपना, ये फिर गिर गई, यानी रमज़ान के महीने में जगह जगह लोग मांग रहे हैं, आप भी उसी स्टाइल में आ गए। आपका तो रुतबा ही बहुत बड़ा, आप तो अपने घर के बाल इधर उधर घुमा डांस करवा के अपने घर के बारे में बताया करती, मैं इतनी ऊँची ख़ानदान की हूँ, इतना बड़ा है, और माशाल्लाह मैं इतने साल बैठ के भी खा सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये और वो। फिर ऐसे आके फुदक के बात कर जाना, इस तरह की आप पे ज़ेब नहीं देता। आप अपने आप को संभालें, इस तरह की बातों को गलियों बाज़ारों में ना लाएं। आप तो लोगों को सुनाती थी, ताने देती थी, आए मैं आपको घर में, मैं हाँ नजमा को आपने बड़ी सुने, मैड रखती हूँ, तुम्हारी बच्चियों को भी मैड रख दूँगी, ना ही आए मैं वैसे ही काम ना करोगे, मैं वैसे ही मेरे बच्चों के डायपर उठा के फेंकोगे, मैं आपको महीने का वैसे ही दे दिया करूँगी। आज आप इतना गिर हो गए हो कि आप रो रहे हो आंसू, और उसमें आज में नजमा में क्या फ़र्क रहा। अगर आप कहते हो मुफ़ाक़ात अमल है, तो फिर देखिए जी, अगर सलमा पे आ सकता है तो आप पे भी आ सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है। लेकिन ऐसी मैं बात नहीं करूँगी, वैसी बात पे बात मैंने कह दी, मैं क्यों कहूँ भाई, किसी का दिल मैं क्यों दिखाऊँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ सिस्टर, आप ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती, लाहौरी बहन को कह रही हूँ, ज़ेब नहीं देती, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े फ़िक्रे बोले हुए हैं, जुमले बोले हुए हैं, फिर आके आंसू लेना, मेरी अम्मी नहीं है, मेरे शोहर की नौकरी छूट गई, ये वो ना करें। ये आप पे ज़ेब नहीं देता, आप पे सूट नहीं करता। आपका जो भरम है, झूठा है, सच्चा है, उसको कायम रखें। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें, हमारी नेक परेशानियों को दूर करो, नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।